مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ کمرے میں آتی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ میرے بھائی نے بہت پیار سے ہمیں آفر کیا، میرے خیال میں ہمیں جانا چاہیے، اور نہیں تو انوائرمنٹ چینج ہونے سے شاید تمہیں اچھا محسوس ہو۔ تم جہاں بھی کہیں میرے ساتھ ہوگے نا، مجھے کبھی اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ ہنی مون پر تو ہسبینڈ وائف دونوں جاتے ہیں، اب کیا تم اکیلے جانا چاہتی ہو؟ ہنی مون کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہماری کون سا محبت کی شادی ہے؟ تو یہ سب ڈرامہ کیوں کریں جب سب کو پتہ ہے کہ اس رشتے کی حقیقت کیا ہے؟ تم کچھ پل کے لیے سمجھ لو ہماری محبت کی شادی ہے، محبت اور تم ناممکن۔ ممکن تو یہاں سب ہو جاتا ہے۔ ویسے سوچو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے تو اس سے پہلے میں اپنی جان لے لوں گی، یہ دل نکال کر باہر پھینک دوں گی اگر تمہارے لیے کبھی یہ دھڑکا بھی تو۔ اتنی شدید نفرت کے باوجود بھی تمہاری سوچوں میں میرا ہی آنا جانا رہے گا، میرے خیال میری ذات سے جڑے رہیں گے۔ میں اس قدر تمہیں خود سے الجھا لوں گا کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہو گی تم۔ ایک چانس دے کر دیکھ لو، شاید تمہیں مجھ سے کچھ اچھا ہی مل جائے۔ وہ اپنا کام چھوڑے اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم میرے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوگے عورت شیر، میں چانس بھی نہیں دینا چاہتی تمہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم تمیز بالکل بھولتی جا رہی ہو۔ تمہاری اور میری ایج میں اچھا خاصا گیپ ہے، اور ویسے بھی تم شور کو ذرا تمیز سے مخاطب کرنا سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب تم زیادتی کر رہی ہو، ایک چانس تو سب کو ملتا ہے یار۔ آپ زبردستی بنے ہیں شور، میں نہیں مانوں گی کبھی بھی آپ کو اپنا شور۔ میں زبردستی شور بن سکتا ہوں تو میں تم سے زبردستی خود کو شور منوا بھی سکتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ میں ابھی سب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ورنہ وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ عورت شیر اور ایشل کے لیے ہنی مون دل شیر نے ارینج کیا تھا، جبکہ مومن اور میرال کو پیرس یا سوئٹزرلینڈ کی آفر سب سے پہلے عورت شیر کی طرف سے ہوئی تھی، مگر میرال پاکستانی دیکھنا چاہتی تھی اور مومن شاہ کا ابھی کام پینڈنگ تھا۔ سومرو والے کیس کے سلسلے میں اسے واپس لاہور بھی جانا تھا، جو شادی کی وجہ سے درمیان میں چھوڑ آیا تھا۔ ایشل بھی رضامند نہ تھی اور مومن شاہ بھی فری نہیں تھا، اس لیے ہنی مون کچھ ٹائم کے لیے پینڈنگ پر چلا گیا۔ موم پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی جلدی کیا پڑ گئی ہے؟ یہ جلدی ہے؟ تمہیں ابھی بھی جلدی لگ رہا ہے یہ سب؟ تمہاری عمر کے سب بیوی بچوں والے ہو چکے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ جلدی کیا ہے؟ میں وہ لڑکی پسند کر چکی ہوں تو بس بات فائنل ہو گئی، اب مزید نہیں لٹکاؤ ہمیں۔ بی جان آپ دیکھ رہی ہیں اپنے لاڈلے کو؟ اچھا تم جاؤ ہمارے لیے چائے لے کر آؤ، میرا لاڈلا ہے تو میں ہی بات کر لوں گی اپنے لاڈلے سے خود۔ ظاہر شاہ کیوں تنگ کرتا ہے اپنی ماں کو؟ مان جانا میرا بچہ، یہی عمر ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے تم سے چھوٹے 3 گھر بار والے ہو چکے ہیں، تم کس انتظار میں ہو؟ بی جان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ کچھ نہیں بی جان، موم تو بس جب بھی کسی کی شادی کو، کسی کی منگنی کو دیکھتی ہیں ایک ہی بات کی رٹ لگا لیتی ہیں، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، کیا کرے؟ ماں جو ہوئی اس کو بھی تو تجھے دلہا بنے دیکھنا ہے نا، یہ خواب تو ہر ماں کا ہوتا ہے۔ اب بتا کیا مسئلہ ہے آخر، کیوں ٹال مٹول کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے باندھ رکھا ہے تجھے؟ کس نے ستایا ہے میرے بچے کو؟ بی جان کھو گئی ہے وہ سر ان کی گود میں رکھتے بے بسی سے بولا کہ اب کیا چھپاتا جب وہ جان ہی چکی تھی۔ کہاں کھو گئی ہے؟ ڈھونڈا نہیں تو نے؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گی۔ کیا وہ ناراض ہے تم سے؟ پتہ نہیں، شاید مل جائے تو سنبھال کر رکھنا، اب کی بار گم مت ہونے دینا اسے۔ محبت کھو جائے تو بار بار نہیں ملتی بیٹا، دھیمے دھیمے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مان جائے ایک بار، مل جائے گی، اگر سچے من سے تلاش کرے گا تو ضرور مل جائے گی، مگر اپنے غصے پر قابو رکھنا، یہ معاملات دل کے ہوتے ہیں تو دل کو اس کا کام کرنے دیا کرو، ہر بات میں دماغ استعمال کرنے نہ لگ جایا کرو، اپنی ذہانت کو اپنے کام کے لیے اور باقی معاملات زندگی میں استعمال کرو، مگر لازم نہیں کہ تم اپنی عقل و فہم سے محبت کے معاملے بھی سلجھاؤ، بہتر ہوگا اپنے دل کو آزاد کر دو۔ بالکل سرفری ہے وہ بی جان کو اپنی سائڈ پر ہی رکھنا چاہتا تھا، ظاہر ہے تیرے جیسے اکھڑ کے ساتھ گزارا کوئی سرفری ہی کرے گی۔ بی جان آپ میری طرف ہیں یا اس کی طرف؟ تیری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ظاہر، مگر وہ تیرے حوالے سے مجھے بنا دیکھے پیاری ہو گئی ہے، کیونکہ وہ میرے ظاہر شاہ کا سکون ہے، میرے ظاہر شاہ کی شریک حیات بنے گی تو مجھے وہ اور زیادہ پیاری ہو جائے گی، یقیناً وہ آپ کے ظاہر شاہ کی شریک حیات بنے گی، لیکن جیسی وہ ہے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ آپ کے ظاہر شاہ کی حیات کیسی ہونے والی ہے آگے۔ اب تو جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، کیونکہ وہ تجھے پسند ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب موم کو اب خود ہینڈل کر لیں۔ یار بی جان، ڈیڈ نے تو موم کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، نہ خود اپنی بیوی کو کچھ کہتے ہیں، باقی پھر کسی کی کیا ہی کوئی اہمیت ہونی ہے انہیں کچھ کہنے کی۔ ظاہر ہے بھائی وہ میر شاہ کی بیوی ہے، اس کے بیٹے کی ماں ہے، ایک عمر گزاری ہے انہوں نے ساتھ، اسے اپنی بیوی کی اتنی عزت کرنی چاہیے جس نے اس کو سنبھالا، اس کے گھر کو سنبھالا، اس کی اولاد کو دنیا میں لائی، اس کے بیٹے کی اچھی پرورش کی۔ ہر بیوی اتنی عزت کی مستحق ہے، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تم لوگ بھی سیکھو اپنے بڑوں سے۔ یار بی جان، ہمارے گھر میں وہ ساس بہو والے جھگڑے کیا کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے؟
अल्लाह ना करे हम क्यों झगड़े करने लगे, जब हम सब अपनी अपनी जगह पर रहें और एक दूसरे को इज्जत दें, हर रिश्ते को उसके असल मकाम पर रखें। हर इंसान जिस रिश्ते के हवाले से जितनी इज्जत और अहमियत का हकदार है उसे उतनी इज्जत और अहमियत दें। तो क्यों होंगे झगड़े। अल्लाह हमें हिदायत दे और आने वालियों को हमारे हक में और हमें उनके हक में बेहतर करे। यहाँ तो इतने थोड़े से दिनों में बदल गया, किसी ने बताया भी नहीं, एक फ़ोन भी करना मुनासिब नहीं समझा किसी ने। फ़ाइज़ा ने भरपूर शिकवा किया, अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ जहन में ही नहीं रहा और तुम्हें अचानक जाना पड़ गया, वरना तुम्हें तो शादी अटेंड करनी ही थी। खैर वो छोड़ो, तुम्हारी वालदा कैसी हैं अब। उष्णा ने तरीके से बात संभाली, ठीक है अब वो, अल्लाह का शुक्र है, वो तो आने ही नहीं दे रही थी। मगर आपको पता है अगले हफ्ते से मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। जिस मकसद के लिए आई हो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे और मुझे कामयाब करे। जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ। उसने बाकी की बात दिल में सोची थी। ज़रूर बेटा, सब बच्चों को उनकी मेहनत का अच्छा नतीजा मिले। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। जी आंटी मैं बस आती हूँ, पहले मुझे दुल्हन से तो मिलवाएं। मीराल अपने कमरे में होगी, जाकर मिल लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीराल जो नमाज से फारिग हुई थी अपने सामने एक अजनबी चेहरा पाया। मेरा नाम फ़ाइज़ा है, मेहमान हूँ यहाँ। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अपने गाँव गई हुई थी, अभी अभी वापस आई तो पता चला यहाँ तो सब बदल चुका है। ओह आए बैठे आप। मीराल ने उसे बैठने की पेशकश की। जी वो कुछ देर पहले किसी काम से निकले हैं। मीराल ने मुनाइमत से जवाब दिया। शादी के तीसरे दिन ही काम पर निकल गए, वो भी इतनी प्यारी दुल्हन को छोड़कर। उसने मसनूई अफसोस से कहा, उनका काम भी तो ज़रूरी है फिर, और वैसे भी वो बोल कर गए थे कि कुछ देर तक आ जाएंगे वापस। आपकी शादी बहुत अचानक हो गई, मीन्स आप मिली कैसे मोमिन शाह को। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मोमिन शाह की बात तो ईशल के साथ तय थी, तो फिर यह अचानक ईशल की शादी उरद शेर से और आपकी मोमिन शाह से, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोमिन शाह की बात ईशल से। मीराल को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। अरे आपको नहीं बताया गया इस बारे में। मीराल ने नफ़ी में सर हिलाया। ओह फिर तो गड़बड़ हो गई मुझसे। ओह फिर तो गड़बड़ हो गई। उफ, अगर मोमिन शाह ने आपको नहीं बताया तो मुझे भी बात नहीं करनी चाहिए थी इस बारे में। मगर आप यकीन करें मुझे हरगिज़ सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। प्लीज़ आप किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, वरना सब मुझे बुरा भला कहेंगे। आप वादा करें किसी से कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं किसी के सामने जिक्र नहीं करूँगी। वो उसे तसल्ली देने को बोली, जबकि अंदर जाने क्यों इतनी बेचैनी पैदा हो गई थी। तो क्या इसलिए ईशल खुश नहीं लगती थी? क्या वो मोमिन और ईशल के दरमियान आई है? क्या उसकी वजह से एक उसकी शादी मोमिन की जगह उरद शेर से हो गई? कितने सवाल एकदम सर उठा चुके थे। चलें आप रेस्ट करें, मैं चलती हूँ, मगर प्लीज़ आप मेरी बेखबरी की गलती को नज़रअंदाज कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। डोंट वरी। वो फीका सा मुस्कुराई। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस एक ही बात दिमाग में घूमे जा रही थी कि मोमिन शाह की निस्बत ईशल से तय थी। सर आपने जो काम बोला था उस सिलसिले में एक अपडेट देनी थी आपको। वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसको कॉल रिसीव हुई। जल्दी बताओ। वो लैपटॉप साइड पर करते पूरी तवज्जो से मुतवज्जो हुआ। गुड जॉब, अब आगे तुम्हें पता है जो तुम्हें करना है। आज शाम तक सारा काम कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म करो, बाकी मैं खुद देख लूँगा सब। ओके सर। इसके बाद उसने एक और नंबर मिलाया और एक दो ज़रूरी बातें की। एक केस के सिलसिले में काफ़ी उलझा हुआ था वो पिछले कुछ दिनों से। हम इस वीकेंड तक इस सब को कंप्लीट करके रेट कर देंगे, मगर इस बारे में जब तक मैं फाइनल नहीं करूँगा तब तक ये बात अपने तक रखोगे तुम। तुम्हें पता है कि कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दूंगा मैं। वो सब ठीक है सर, मगर ये कुछ जल्दी नहीं होगा। मीन्स पहले तो आपने ये नहीं बताया। मुझे जब जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ, तुम सिर्फ जो कहा जाए उसको फॉलो करो। सर ये अच्छा खासा रिस्की काम है, हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप देख लें, वो बंदा शायद उसे इस सब से बाज रखना चाहता था। छोटे मोटे रिस्क तो फिर लेने पड़ते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे तुम भी कदम बढ़ाकर पीछे हटाना, हमारा काम ही ऐसा है, वैसे भी कदम बढ़ाकर पीछे हटाना ज़ाहिर शामिर की आदत नहीं। सो हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसी वीकेंड पर करेंगे। क्या आप प्लान में कुछ और भी चेंजेस करेंगे सर? उरद शेर हमें ज्वाइन करेगा इस केस में, मगर तुम अभी ये बात किसी से नहीं करोगे। वो मुझे अकेले नहीं जाने देना चाहता, इसलिए बस जिद है और मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। इसलिए उसका नाम अभी मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर तो हमारे हैं, मगर वो हमारे दरमियान रहकर और लोगों के लिए काम करते हैं। हमें उन्हें भी फाइंड आउट करना है और उनसे बचकर अपना काम भी अंजाम तक पहुंचाना है। उरद शेर के साथ मत उलझना, उसका काम करने का अपना तरीका है, उसको करने देना उसके हिसाब से। सर मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और मुझे उनके साथ लास्ट टाइम वाला केस अभी तक याद है।
आप हनी से दो टोक बात कर लें मुर्तज़ा, आपकी बेटी पूरी तरह से हाथों से निकलती जा रही है। मैं क्या करूं साहिरा, कितनी बार तो बात कर चुका हूं मैं उससे, मगर वो नहीं मान रही। उसका एक ही जवाब है कि नहीं करनी शादी। अब क्या करूं, मारूं पीटूं क्या? आप बाप हैं उसके, आपको ये भी हक हासिल है कि मारें पीटे, कमरे में बंद कर दें, आप जो चाहें कर सकते हैं। वो नहीं मानेगी साहिरा, तुम तकी से माजरत कर लो, बेहतर होगा वो वापस चला जाए। उसका और हनी का वैसे भी कोई मैच नहीं, हनी तकी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। ऐसे कैसे इनकार कर दूं, महीना हो गया है उसको सब छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठे हुए। अब मैं उसको कहूँ कि हमारी बेटी हमारे काबू में नहीं, सॉरी, आपकी बेटी आपके काबू में नहीं। अगर मेरी बेटी होती तो 1 मिनट में सीधा कर देती। कैसी बातें करती हो, वो तुम्हारी भी बेटी है साहिरा। ऐसी बात है तो आप मुझ पर छोड़ दें। ये सब मैं भी उसका भला ही सोच कर रही हूँ। तकी घर का लड़का है, इस तरह हमें हनी की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। वो उसके मिजाज को भी समझता है। बल्कि हनी और तकी शादी के बाद हमारे साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। अगर वो मान जाए तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। वो किसी से मिलने जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी झटके से बंद हो गई। वो झुंझलाया सा बाहर निकला। इसको भी अभी ख़राब होना था। उसका मूड इंतहाई शदीद ख़राब लग रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला। ज़ाहिर शामिर स्पीकिंग, जल्दी से किसी मैकेनिक को भेजें, मेरी गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ गया। लोकेशन आपको सेंड किया, ज़रा जल्दी करें, मुझे पहुंचना है कहीं। वो गाड़ी से टेक लगाए वहीं खड़ा इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था। उसको आज अपनी मॉम की पसंद करदा लड़की से मिलने जाना था और रास्ते में ये स्यापा हो गया। फिर उसने मोबाइल पर कुछ बटन्स प्रेस किए और मोबाइल कान से लगाया और यूं ही इधर उधर टहलने लगा। हेलो मिस अरीशा बात कर रही हैं? मैं ज़ाहिर शामिर बात कर रहा हूँ। मॉम ने नंबर दिया था आपका। मैं अभी आपकी तरफ ही आ रहा था आपको पिक करने, मगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं शायद कुछ लेट हो जाऊँ। क्या पॉसिबल है कि हम कल मिल लें? अगर आप आइंदा भी यूं ही मेरे मसाइल को समझकर मेरा साथ देंगी तो यकीनन हम साथ चल सकते हैं। बाकी हम कल मिलकर सब देख लेंगे, हमें एक साथ होना चाहिए या नहीं। ओके ठीक है, मैं कल आपका वेट करूँगा। उसने रेस्टोरेंट का नाम बताकर अलविदाई कलमात कहकर कॉल बंद कर दी। अपने केस से पहले पहले उसे ये मामला किसी साइड लगाना था। मोमिन शाह, ये क्या तुक बनती है? तुम शादी के 4 दिन बाद ही मुंह उठाकर लाहौर जा रहे हो, वो भी मिराल को यहाँ पर अकेला छोड़कर। इरहा का सुबह दिमाग ख़राब हो गया था। माई डियर मोमसी, आप पहले यहाँ बैठ जाएं, फिर बताता हूँ। मोमिन ने उसे कंधों से थाम कर वहाँ बिठाया। बोलो, क्या बताना चाहते हो? अपनी वकालत मुझ पर मत झाड़ना, समझे तुम? ओके, नहीं झाड़ता। बात यह है कि आपको पता है मैं अपने केस के सिलसिले में लाहौर गया, मगर अचानक ये सब हो गया। पहले मुझे गोली लगी, फिर निकाब, फिर औरत बिना कुछ सुने मुझे वहाँ से यहाँ ले आया। ये सब शादी वगैरह शुरू हो गई, मगर इस सब में मेरे काम का काफ़ी हर्ज हो चुका है। आपको पता है मुझे अपने क्लाइंट्स को फजूल में ख्वार करना पसंद नहीं, ना तारीखों पर तारीखें लेते रहना मेरा शेवा है। इसलिए अब मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। रही बात मिराल की, तो परेशानी की क्या बात है, वो अपने घर में, आप सब हैं यहाँ उसका ख्याल रखने को, और मिराल को कोई एतराज़ नहीं इस पर। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, जल्द काम निपटा के वापस आ जाऊँगा। मगर फिर भी बेटा, शादी के शुरू के दिन तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को साथ गुजारने चाहिए। तुमने हनीमून भी डिले कर दिया। वो अगर पाकिस्तान ही एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसको नॉर्दर्न एरियाज ही दिखा लाते, मगर तुम हो के उठकर अकेले चल दिए हो। हम सब हैं, मगर हम तुम्हारी जगह तो नहीं हो सकते ना। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो साथ ले जाओ उसे। जहाँ से उसको निकाल कर लाया हूँ वहीं मरने के लिए ले जाऊँ? यार मुंशी, इसीलिए तो छोड़कर जा रहा हूँ कि वो यहाँ महफूज रहेगी ना। सब है ना इधर, उसका दिल लगा रहेगा। वहाँ मैं काम में बिजी रहूँगा तो अकेली बोर होती रहेगी और परेशान अलग। मोमिन शाह, मैं तुम्हें क्या कहूँ अब? वो अब कुछ हद तक उसकी बातों से मुत्तफिक हो चुकी थी। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, मगर मैं जानता हूँ आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं मोमिन मुराद शाह हूँ। मैं बिल्कुल अपने बाबा जैसा हूँ। आपको चूँकि मोमिन शाह से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं भी आपको बहुत प्यारा हूँ। माँ से मस्खरियाँ करते शर्म तो नहीं आती तुम्हें? उसने झिमते उसको एक चपत लगाई। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो सच ही तो कह रहा था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसकी मुराद शाह के लिए मोहब्बत और अकीदत आज भी वैसी ही थी। और जब मोमिन शाह उसकी गोद में आया तो उस दिन उसको लगा कि उसका वजूद मुकम्मल हो गया। फिर कुछ मोमिन शाह की मुशाबिहत मुराद से बहुत ज़्यादा थी। नैन नक्शा, वही लहजा, वही रख रखाव। इरहा को मुराद शाह से जुड़ी हर चीज़ प्यारी थी। यह फिर उसकी औलाद थी, उसका खून था, उसकी ज़िंदगी मुराद शाह, मोमिन शाह और मिनल शाह से थी बस।
आप आराम से बाबा के ख्यालों में खो जाएं, मैं आपकी बहू को देख लूं ज़रा। वो इरहा को गुम देख मज़ीद शरीर हुआ। बहुत बदतमीज़ हो तुम। वो कमरे में आया तो मीराल उसकी पैकिंग कर रही थी। आप एक दफ़ा देख लें, मज़ीद कोई चीज़ रखनी है तो बता दें, वो मसरूफ़ सी बोली। मोमिन शाह चलता उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, फिर नरमी से उसका हाथ थामते उसे बेड पर अपने पास बिठाया। ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो उसने आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से हाथ निकाला। अगर यहाँ अकेले रहने से घबरा रही हैं तो फिर साथ चलें, क्योंकि अगर ऐसे परेशान रहेंगी तो मैं काम कैसे करूँगा। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उसको घबराहट तो बहुत हो रही थी, मगर अब मज़ीद उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कहाँ कहाँ वो खुद को उस पर मुसल्लत करेगी। उसे खुद को मजबूत करना था, अकेले सब हैंडल करना सीखना था। इतने दिनों में आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब कैसे हैं, इसलिए फ़िक्र मत करें, आपको कोई परेशानी ना होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं कॉल करता रहूँगा और जल्दी काम ख़त्म करके आ जाऊँगा। उसके दोनों हाथ थामे वो अब उसको तसल्लियाँ दे रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद आंसू उसकी गालों पर लुढ़क आए। मीराल, ये क्या बात हुई? ऐसे क्यों कर रही हैं? आपने खुद ही तो कहा कि मैं चला जाऊँ और आप यूँ कर रही हैं। अच्छा उठें और जल्दी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख लें, हम साथ चलेंगे बस। अब रोना नहीं है प्लीज़ यार, मुझे तो ठीक से चुप भी नहीं करवाना आता। सॉरी, आप जाएं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। वो आंसू पोंछते उठी। कोई बात परेशान कर रही है आपको? नहीं तो। आप छुपा रही हैं कुछ, मैंने नोट किया है। आप उलझी हुई सी हैं, बस आदत नहीं है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और तो कोई बात नहीं। पक्की बात है ना? यही बात है ना? जी, मजबूरी है वरना नहीं जाता मैं जानता हूँ आपको भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, मगर यूँ रोने से कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, ये सब आपका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब मुस्कुरा कर रुखसत करें। अल्लाह की अमान, खैरियत से जाएं। उसकी घड़ी उसको थमाते वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चले आ जाएं। एक हाथ से कैरी और एक हाथ में उसका हाथ थामे वो बाहर निकल आया।